Hello children, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Tribal Societies and the Challenge of Colonialism. What we are going to read in this chapter about the tribe and tribals and life of tribals, forest laws and their impact, about a case study, and tribals, about the society and economy, and the British and tribals, and the tribal revolt in eastern India. The British took over large area under cultivation. They took over the political power and adopted the expansion policy in the process. They encroached upon the natural habitat of the tribals, and this dispersed the tribals and resulted in widespread revolts. The lands of the tribals were used for cultivating cash crops such as indigo, jute and poppy. जो ट्राइबल पीपल थे उनकी लैंड को जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन लेना चाहते थे, क्योंकि कैश क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने ट्राइबल की जो लैंड थी उसको अपने अंडर ले लिया था कल्टीवेशन के लिए, जहाँ पर वो कैश क्रॉप ग्रो करते थे जैसे कि इंडिगो, जूट एंड पोपी. नाउ व्हाट अबाउट ट्राइब एंड ट्राइबल्स? ट्राइब क्या होता है? अ ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, अ डीप बिलीफ एंड कस्टम्स एटसेट्रा, इन विच द मेंबर्स टेक प्राइड एंड यूजुअली लिव इन वन पर्टिकुलर एरिया रूल्ड बाय देयर लीडर. The people related to tribe are called tribals और आदिवासीज. ट्राइब क्या होता है? ट्राइब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही कस्टम को फॉलो करते हैं और एक ही बिलीफ में विश्वास रखते हैं. ओके, तो उस मेंबर के उस ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको इकट्ठा क्या बोला जाता है? ट्राइबल्स बोला जाता है या फिर आदिवासीज. Columbus called the native people of North America as Red Indians, and the British Commissioner later called them as Indian tribes. Adivasis were also called as forest or hill people. The tribal people mostly live in remote areas and are concentrated in heavily forested areas. They did not follow social rules and rituals. ये लोग कहाँ रहते हैं? ये भीड़ भाड़ से दूर जंगलों में रहते हैं. आदिवासीज अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, किसी सोशल रूल एंड रिचुअल को ये फॉलो नहीं करते हैं. They survived mainly on hunting and gathering. Some were animals herder and some practiced primitive cultivation. कुछ लोग कल्टिवेशन करते हैं और कुछ लोग हंटिंग एंड गैदरिंग पर डिपेंड हैं. Some were animal herder and some practiced primitive cultivation. Tribal societies had their own social divisions and followed their own laws. The sources of tribal history are mainly their ballads and folklores, which have passed on from one generation to the other orally. They are also official documents, gadgets and newspaper and biographies of the recent years. इन लोगों के बारे में, ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता लगता है? जो ओरली स्टोरी हमें जनरेशन टू जनरेशन सुनाई गई हैं उनसे हमें पता लगता है, और जो उस टाइम के न्यूज़पेपर, बायोग्राफीज़ या डॉक्यूमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, उनमें इनके बारे में लिखा हुआ है. नाउ ट्राइबल सोसाइटी एंड इकोनॉमी. कैसे इनकी सोसाइटी होती है और क्या इंडिया की इकोनॉमी पे ये क्या इफेक्ट डालते हैं? मैनी ट्राइबल ग्रुप्स सेटल्ड इन इंडिया. द पॉपुलर वंस आर मुंडास, संथल्स, ओरोन्स, Beggars, Gonds and Khons, and the Khasis and Nagas. The tribals do not follow the caste system. They have distinct culture of their own. ये caste system को follow नहीं करते हैं, इनका अपना culture होता है. They do not have any conflict. इनके कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कोई बहस नहीं करते हैं. Each tribal group follows its own belief, custom and rituals. अपने रीति रिवाज, अपने custom, अपने belief ये follow करते हैं. Their main economic stay is natural resources, forest product of the region where they live. जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ के जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वही इनकी मेन इकोनॉमिक स्टे होता है. जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वहीं पर ये लोग बस जाते हैं. Some of them have settled
while some move from one place to another. They are engaged in different activities like hunter gathering, shifting cultivation and animal rearing. Now, life of tribals. Hunter and gatherers. कैसे उनकी लाइफ होती है? मोस्टली क्या करते हैं वो? हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की गैदरिंग करते हैं. फॉरेस्ट वर देयर लाइफलाइन. द खोन्स वर द ट्राइबल पीपल ऑफ ओडिशा who went for hunting and divided the meat among themselves. They also collected fruits and roots from the forest. क्या करते हैं? जो आदिवासी होते हैं वो किसी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते हैं और आपस में बांट लेते हैं. The Khons of Odisha supplied kusum and plash flower to local weaver and leather worker to color their clothes and leather. और कुछ खोन ऑफ ओडिशा जो है, खोन ट्राइब जो है वो क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट में कुसुम एंड पलाश फ्लावर ग्रो होते हैं वो लोकल वीवर को सप्लाई करते हैं. इट वॉज एसेंशियल फॉर द ट्राइबल टू गेट देयर सप्लाई ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन. क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बदले उनको चावल और दूसरे अनाज मिलते हैं. Broadly, there were three ways in which they could get rice and other grain. First, they exchanged the forest product for the things that they required. पहले तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं, जो भी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं. सेकेंडली, व्हेन द प्रोड्यूस फ्रॉम द फॉरेस्ट shrunk, they went to the villages to find work as laborer, carrying loads and building roads. Some worked in the fields of the farmer. जब इनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस ख़त्म हो जाते हैं या कम होते हैं तो ये लोकल लोगों के पास, विलेजर्स के पास जाके काम मांगते हैं, एज ए लेबर का काम करते हैं, भारी सामान को इधर से उधर ले जाना या रोड बनवाने में या खेतों में काम करते हैं. दे बोट गुड्स विद देयर स्मॉल अर्निंग. Third, the tribals had to depend on traders and money lenders to buy goods, which were not available in the forest. Traders came to sell the goods and charged a very high price. Money lenders gave loans and charged a high rate of interest. For the tribal, buying and selling meant debt and poverty. ट्रेडर्स का क्या करते हैं? यहाँ पर ट्रेडर और मनी लेंडर आते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर. तो अगर कुछ भी सामान खरीदना और बेचना जो ट्राइबल पीपल हैं उनके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है. द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर एविल आउटसाइडर्स and they were often considered to be the main cause of their misery. जो मनी लेंडर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनको मेन कॉज ऑफ मिजरी माना जाता है आदिवासीज का, क्योंकि वो उन्हें पहले तो मनी लैंड करते हैं, उन्हें मनी उधार में देते हैं और फिर वो चुका नहीं पाते तो उन्हें एज ए लेबर बना लेते हैं और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं. नाउ, झूम कल्टिवेटर्स. कुछ लोग तो हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं वहाँ पर? झूम कल्टिवेशन करते हैं. एंड विच वॉज डन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. दे कट ट्रीज एंड बर्न्ड वेजिटेशन सो दे कुड यूज द लैंड देयर. क्या करते हैं उसके लिए? कुछ ट्रीज को कट करके वहाँ की वेजिटेशन को जलाकर उस लैंड को वो कल्टिवेशन के लिए साफ करते हैं. दे स्प्रेड द एश फ्रॉम द फायर विच कंटेन पोटाश टू मेक द सॉइल फर्टाइल. Trees were cut with axe and hoe to scratch the soil, to make it fit for cultivation. Seeds were scattered on the field. Once harvesting of the crop was done, farmers shifted to another field. जब एक खेत से हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप खत्म हो जाती है तो वो दूसरे खेत पर चले जाते हैं. The cultivated field was left for some years so that it could regain its fertility. और जो cultivated फील्ड है जिससे कल्टीवेशन प्रोड्यूस वो गैदर कर चुके हैं उसको कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि दोबारा से वो फर्टिलिटी गेन कर पाए. This was called jhum or shifting cultivation and was practiced in the hilly and forested parts of northeast and central India. People of this tribe remained confined to forest only. और ये जो लोग हैं एक खेत पर खेती करके फिर वहाँ से दूसरे खेत पर करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं कल्टीवेशन रीस्टोरिंग के लिए ताकि वो दोबारा से फर्टाइल हो जाएं, फिर दूसरी प्लेस पर कल्टीवेशन करते हैं. इसीलिए इस कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन माना जाता है. डिड यू नो? Jhum cultivation is still practiced in hilly areas of northeast and central India. Areas around Meghalaya and Chhattisgarh are still known to practice the jhum cultivation. अभी भी देश के कुछ हिस्सों में झूम कल्टीवेशन की जाती है. Now,
herders of animals. कल्टीवेशन के अलावा क्या करते हैं, कुछ जो ट्राइब हैं वो एनिमल्स हर्डिंग भी करते हैं. ट्राइबल्स वर पेस्ट्रोलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्डर ऑफ शिप. पेस्ट्रोलिस्ट है मोस्टली, यानी अपने ग्रुप के साथ, ग्रुप ऑफ कैटल के साथ, शिप के साथ इधर से उधर मूव करते हैं. एंड दीज में इंक्लूड वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब, लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, द गद्दीज ऑफ कुल्लू एंड द बक्करवालाज ऑफ कश्मीर. द ब्रिटिश एंड ट्राइबल्स. Before British rule came to India, tribal chiefs were important people who enjoyed economic and administrative influence over the people. In several areas, they had their own police and local rules of land and forest management. ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले जो ट्राइबल पीपल थे वो बहुत अच्छी लाइफ इंजॉय कर रहे थे. उनके खुद की पुलिस होते थे, खुद का अपना लॉ एंड ऑर्डर होता था. विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, the rule and power of tribal chief underwent a considerable change. Earlier, they were allowed to keep their land titles and even rent out lands. However, they lost all the power under British rule. They even had to pay tribute to the British and lost considerable authority which they enjoyed earlier. Even धीरे धीरे उन्होंने अपनी लैंड को भी खो दिया और उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ता था. The British did not like tribal who wandered from one place to another. They wanted to see them as settled cultivators. Settled peasants could be controlled easily. ब्रिटिशर्स को ये अच्छा नहीं लगता था कि जो ट्राइबल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. वो चाहते थे ये एक जगह पर सेटल कल्टीवेटर बन जाए ताकि इनको कंट्रोल करना इजी हो जाए. एंड इनके लिए क्या उन्होंने रेवेन्यू उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, रेगुलर सोर्स. एंड द ब्रिटिश देयरफॉर इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट. इट वाज टू बी डन बाय मेजरिंग लैंड एंड फिक्सिंग डिमांड ऑफ द स्टेट. Some peasants were declared owners of the land while the others were tenants. Tenants had to pay rent to the owners who in turn paid revenue to the state. The British effort to settle jhum cultivation paid dividends. Scarcity of water, however, did give them some problem. लेकिन झूम कल्टीवेशन जैसे वो लोग करते थे या फिर स्कार्सिटी ऑफ वाटर थी, पानी की कई जगह पर कम थी, इससे वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं कर पाए. नाउ फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. उस टाइम पर क्या फॉरेस्ट लॉज थे? लाइफ ऑफ ट्राइबल वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. एनी चेंज इन लॉज ऑफ फॉरेस्ट वुड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द ट्राइबल्स. अब ट्राइबल का जीने का सहारा क्या था? फॉरेस्ट. तो कोई भी ऐसा कानून चेंज कर देना, सीधा इसका मतलब क्या था? ट्राइबल लोगों की लाइफ को चेंज कर देना. Forests producing timber were called reserved forest. In such forests, tribal were not allowed to roam freely or practice झूम कल्टीवेशन. जहाँ पर टिम्बर ग्रो होता था, ऐसे जंगलों में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, या फिर उन खेतों में जहाँ पर टिम्बर ग्रो होता था उन फॉरेस्ट में वो झूम कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते थे. It made life of jhum cultivator difficult. The British later on, however, allowed jhum cultivator to settle near forest on the condition that those living near forest would have to provide labor for the forest department when required. हालांकि कुछ लोगों को आज़ादी दी गई थी झूम कल्टीवेशन की, उसके बदले उन्हें क्या करना होगा? जब भी ब्रिटिशर्स को फॉरेस्ट लेबर की ज़रूरत होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे. बट ट्राइबल्स रेजिस्टेड दिस एक्सप्लॉयटेशन. दे अपोज ब्रिटिश लॉ. लेकिन ट्राइबल को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो आ गए. द रेबेल्ड ओपनली एंड कंटिन्यूड विद देयर ओल्ड पॉलिसीज. The 1906 revolt in Assam by Songrav Sangam and the forest satyagraha of 1930s in the central province can be the cited as example here. और ऐसे ही एग्जाम्पल हैं जब ट्राइबल पीपल ने, ट्राइबल ग्रुप ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. फॉर एग्जाम्पल सोंग्राव संग्राम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s. नाउ प्रॉब्लम्स emerged from changes in law. जो ट्राइबल्स थे वो लॉ में जो चेंजेस आ रहे थे उससे अनहैप्पी थे. डिसलाइक रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड दे डिसलाइक पेइंग न्यू टैक्सेस. ना तो वो टैक्स पे करना चाहते थे और ना ही वो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पर कोई भी इंटरफेरेंस चाहते थे. दे वर ऑल्सो एंग्री एट एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स. बाय लेट
19th and early 20th century, tribal groups in different part of the country rebelled against these problem. For example, जैसे कि कोल्स रेबेलियन हुई 1831 to 32, संथल रेबेलियन in 1855 in बिहार एंड बंगाल, भील्स बस्तर रेबेलियन in 1910, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड द वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र in 1940. Birsa Munda was a tribal from Jharkhand and he led one such movement. बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था झारखंड से, जिसने एक रिवोल्ट को सामना किया, जिसने एक रिवोल्ट को ऐसी मूवमेंट को शुरू किया. नाउ ट्राइबल रिवोल्ट्स इन ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में कौन सी ट्राइबल रिवोल्ट चल रही थी उस टाइम? In 1829, the Khasis, a primitive tribe inhabiting the hilly region in the northwest on the border of Assam, revolted against the British. बॉर्डर ऑफ असम पर एक ट्राइब थी खासिस, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर रही थी. द ब्रिटिश डिजायर टू कंस्ट्रक्ट अ रोड विच पास थ्रू द लैंड्स ऑफ द खासिस. ब्रिटिशर्स असम में क्या चाह रहे थे? वो एक रोड, ऐसा रोड बनाना चाह रहे थे जो खासिस की लैंड को कट करता था, पास कर रहा था. इट वॉज रिजेंटेड बाय द खासिस. द खासी चीफ नंबरिंग nearly 30 finally decided to turn out the British not only from the hills but also from the plains of Assam and organize themselves under Bar Manik. Another chief who participated in the revolt was Tirut Singh. The insurrection broke out in May 1829. It continued for nearly 4 years and covered a large part of the territory of Assam. इस तरीके से जो असम में खासी ट्राइब थी, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया अंग्रेजों के खिलाफ और उन्होंने रोड पास नहीं करने दिया. The British suppressed it brutally, established a sort of economic blockade of the territory of Khasis and systematically burnt and plundered Khasi village. ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस रेवोल्यूशन को, इस रिवोल्ट को वहीं पर दबा दिया और बहुत सारे खासी विलेज को वहाँ पर लूट लिया और उनके घरों में आग लगा दी और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया. The Nagas revolted against the British in 1849 and could be suppressed only in 1850-51. And the Kukis, who inhabited the Lushai Hills and the hill region of Manipur and Tripura and engaged themselves in hunting, attacked the British territory in 1829, 1844 and 1849. They were finally forced to submit in 1850. इस तरीके से बहुत सारी ट्राइब्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हर एक रिवोल्ट को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया, यानी बहुत ही कम ड्यूरेशन में उस रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया. ऐसे ही द खोंद ऑक्यूपाइड अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी called Khondamal, neighboring Odisha. They led a primitive life with their own social custom. They feared that the British would annex their lands and exact forced labor. Therefore, they revolted in 1846 and they suppressed in 1848 and finally they have to submit the British rule. ऐसे ही संथल्स थे एंड ऐसे ही कावावर रिबिलियन हुई. काचा नागाज थे जो कि अलग अलग रूप में, अलग अलग ग्रुप में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किए, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत जल्दी उस चीज़ को सुप्रेस कर दिया. नाउ डिड यू नो ऑन 30 June 1855 Sidhu and Kanhu mobilized 10,000 Santals against the British. They could throw arrows with great accuracy and impact. The British decided to force them out of the forest to suppress the rebellion. दो लीडर्स ने एक आर्मी बनाई, एक ग्रुप बनाया संथल्स का, जिसमें 10,000 संथल्स थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकते थे. एरोज़ को वो एग्जैक्टली जिनका निशाना नहीं चुकता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिसाइड कर लिया था कि उस ग्रुप को वो वहाँ से हटा के रहेंगे और बहुत जल्दी ही उन्होंने इस ग्रुप को सुप्रेस कर दिया. नाउ वी विल रीड अबाउट अ केस स्टडी ऑफ अबाउट Munda rebellion under Birsa Munda. Birsa Munda started his revolt against the British in the Chota Nagpur region. It was directed at British policies that allowed the Jamindars and Mahajans, moneylenders, to harshly exploit the Adivasis. Birsa Munda was the leader of that revolt.
जिसने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें जमींदार और महाजन थे वो सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, आदिवासी इसको एक्सप्लॉइट करते थे, उनके खिलाफ एक रिवोल्ट स्टार्ट की बिरसा मुंडा ने। इन अ बॉर्डर सेंस द रेबिलियन एम टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश अलोंग विद द मनी लैंडर्स, मिशनरीज एंड द क्रूअल लैंडलॉर्ड्स। Birsa protested against the non-tribal occupying tribal lands. He disliked the Mundas being ill-treated by moneylenders and landlords. Munda farmers were advised by him not to pay rent to the जमींदार्स। और बिरसा मुंडा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जमींदार्स और मनी लैंडर वो फार्मर को, जो उनकी ट्राइब थी, बिरसा मुंडा ट्राइब थी, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसलिए बिरसा मुंडा ने ये लीडरशिप संभाली और उसने मुंडा ट्राइब को कोई भी टैक्स पे करने से मना कर दिया। द एंटायर मुंडा कम्युनिटी जॉइंड दिस मूवमेंट। एज द ब्रिटिश सो द मूवमेंट स्प्रेड दे अरेस्टेड हिम इन 1895। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये मुंडा बहुत ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने मुंडा को अरेस्ट कर लिया। On charges of rioting, he was convicted and jailed in 1895. In 1897, he was released. After his release, the Munda tribal once again railed around their popular leader and attacked police stations, churches, British officials and missionaries. They also raided the property of landlord and moneylenders. A white flag was raised as the symbol of Birsa Raj. दोबारा जब वो रिहा हुए जेल से, ब्रिटिशर से, दोबारा से जो मुंडा ट्राइब के लोग थे वो अपने पुराने लीडर के साथ एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। बहुत सारे ब्रिटिशर ऑफिशियल के घरों पर अटैक किया गया, मिशनरीज पर अटैक किया गया और जो लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर थे उनके ऊपर भी अटैक किया गया और एक वाइट फ्लैग को फहराया गया जो कि सिंबल था बिरसा राज का। नाउ come to learn about key points. A tribe is a group of people united by a common name, a common language in which the members take pride. ट्राइब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जैसे कस्टम्स को फॉलो करते हैं, एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। सम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिसाइज झूम कल्टीवेशन, ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ ट्राइबल ग्रुप क्या करते हैं? झूम कल्टीवेशन करते हैं। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest product. The Khond were such a commonly found tribe in Odisha. Many tribal groups also lived by herding and rearing animals. ज़्यादातर जो ट्राइबल ग्रुप है वो क्या करते हैं? हंटिंग ऑफ एनिमल करते हैं एंड गैदरिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, और कुछ क्या है? हर्डर्स का काम करते हैं जो एनिमल की रियरिंग करते हैं। Before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down. And the lives of the tribal groups changed during British rule. जो लाइफ थी ट्राइबल पीपल की ब्रिटिश रूल के बाद बिल्कुल चेंज हो गई। द ब्रिटिश फोर्स द ट्राइबल ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। And during the 19th century, tribal groups found out that traders and moneylenders were exploiting them. The plight of the tribals deteriorated while working in coal mines for longer hours. जो गर्व की बात थी ट्राइबल पीपल के लिए वो डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक उनको कोल माइंस में काम करना पड़ता था। ट्राइबल अपराइजिंग्स इन ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडेड खासी, खोन, संथल, कुकी रिवोल्ट्स। And Birsa led the rebellion of the Mundas against the British and won rights for them. बिरसा मुंडा जो कि एक ग्रेट ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने एक रेबेलियन फोर्ट की अंग्रेजों के खिलाफ और उसमें उनको जीत हासिल कराई। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।